फ्रेंड्स वेलकम यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दशहरा। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है फ्रेजेस। और इसका जो नेक्स्ट वाला पोर्शन है वो है क्लॉजेस। उसको हम बाद में डिसाइड करेंगे, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को फ्रेजेस के रिगार्डिंग इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहती हूँ जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ। तो देखिए, फ्रेज़ क्या होता है। फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस बट पार्टली, मीन्स टू से कि फ्रेज शब्दों का वह ग्रुप होता है जो कि मीनिंग तो देता है लेकिन वो इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। कैसे? एग्जाम्पल के तरीके से यहाँ पर देखिए सामने कि इन द सिटी, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल एट द 11th आवर। थर्ड एग्जाम्पल द राइजिंग टाइड्स ऑफ द सी। Phrase plays a very important role to give the meaning to the sentence, but we need to connect these phrases to the main part of the sentence. Only then they can give the correct or actual meaning. Let me tell you how. Like here is written in this city, so I can connect this group of words to the main part of the sentence by writing here an example. Many people see many people live in this city. Okay friends, so in this city has been attached to the main part of the sentence. Now it is complete in itself. Okay, let's see the second example at the 11th hour. What is the meaning of at the 11th hour? It means at the last moment. It means at the last moment. It's a kind of phrase we generally use to give the deadline to someone or telling someone that this is the correct time to be attentive, otherwise time will not be yours. So let me tell you how. My friend usually studies at the 11th hour. Okay friends, so what I am telling here कि मेरा जो फ्रेंड है वो नॉर्मली या यूजुअली आप कह सकते हैं लास्ट मोमेंट पे ही पढ़ाई करते हैं, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, द राइजिंग टाइड्स ऑफ द सी। राइजिंग टाइड्स ऑफ द सी का मीनिंग क्या है? राइजिंग माने एक ज्वार भाटा जो कि समुद्र में उठता है, तो उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं कि इन द सी we generally see, in the sea we generally see the rising tides. Okay friends, and we can write this sentence in the same way. We generally see the rising tides in the sea. This is also a correct way. Both the ways are absolutely right. You can start by using in first or you can start by using we first. Okay friends, so what I mean to say कि these group of words play a very important role only when we connect them to the main part of the sentence. First of all guys, do one thing. You can take a photo of this board or you can take a screenshot. Then after that I will tell you something, some more things regarding this topic. Let's move on. Now let me tell you कि how many types of phrases are there. So basically phrases are of 5 types. Number 1, noun phrase. Second one, adjective phrase. Third one, adverb phrase. Fourth one, prepositional phrase. And fifth one is verbal phrase. But in this video I will tell you only about the starting 3 phrases and remaining 2 phrases I will let you know later. So the very first is noun phrase. What is the definition? आपको मैं समझा देती हूँ. देखिए, a group of words that does the function of a noun in the sentence is called a phrase, is called a noun phrase. कहने का मतलब ये है कि एक सेंटेंस के अंदर
जो शब्दों के समूह की हम बात करें, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स की जो हम बात कर रहे हैं, वो जब नाउन की तरीके से काम करता है, वो जब नाउन की तरीके से काम करता है तो उसको हम कहते हैं नाउन फ्रेज। एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आई एक्सपेक्ट टू गेट अ प्राइज, सो हेयर यू कैन से टू गेट अ प्राइज, this is the group of words and here it is functioning like a noun. Second example, let me tell you, his sudden resignation is a mystery. So his sudden resignation is a group of words which is working like a noun. ठीक है, सो दीज टू एग्जाम्पल्स आई थिंक आपके लिए एसेंशियल रहेंगे, आपके लिए एम्पल रहेंगे। अब मैं आपको एक चीज़, आपको एक डाउट आपको और क्लियर करती हूँ। नॉर्मली जब आपके सामने आपको बोला जाता है कि आप इसमें से आइडेंटिफाई करिए कि इसमें नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है या एडवर्ब फ्रेज है, तो मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको एक आइडिया देती हूँ इस चीज़ के लिए, क्लू बताती हूँ जिससे कि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो नाउन फ्रेज होते हैं हमेशा वो आंसर करते हैं व्हाट क्वेश्चंस का। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ये वाला मैंने बताया आपको, आई एक्सपेक्ट टू गेट अ प्राइज़, मतलब मैं उम्मीद करती हूँ या मैं आशा करती हूँ कि मुझे एक प्राइज़ मिलेगा या मैं एक प्राइज़ विन करने की एक्सपेक्ट करती हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, हिज सडन रेजिग्नेशन इज़ अ मिस्ट्री, उनका अचानक से दिया गया रेजिग्नेशन जो है वो एक मिस्ट्री बन के रह गई। ठीक है, तो इसका अगर हम क्वेश्चन बनाएं तो क्या बनेगा, आई एक्सपेक्ट टू गेट अ प्राइज़, तो क्वेश्चन इसका जब हम बनाएंगे तो बनेगा व्हाट डू आई एक्सपेक्ट, मैं क्या उम्मीद करती हूँ, तो क्वेश्चन बन के आ गया व्हाट। तो जनरली जो स्टेटमेंट्स हैं आपको उसका क्वेश्चन फॉर्म करना है। इफ द क्वेश्चन इज स्टार्टिंग विथ व्हाट, देन डेफिनेटली देयर इज़ अ नाउन फ्रेज। तो ये एक टेक्निक है, ये एक ट्रिक है इस चीज़ को ईजिली फाइंड आउट करने की फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप आपको ये नाउन फ्रेज अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद अब मैं आपको समझाऊंगी एडजेक्टिव फ्रेज। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे समझा देती हूँ। फ्रेंड्स, नाउन फ्रेज वी हैव डन, नाउ लेट्स मूव हेड। देखते हैं सेकेंड वाला पार्ट जो है फ्रेज का वो क्या है, वो है आपका एडजेक्टिव फ्रेज। सेम हियर, जैसे कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस के अंदर नाउन के तरीके से काम करता है तो वो नाउन फ्रेज बन गया। इन द सेम वे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एडजेक्टिव की सबसे पहले आपको हर चीज़ की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए, हर पर्टिकुलर पार्ट की डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स आर नोन एज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ठीक है, या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं द वर्ड्स विच डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव माने विशेषण। अब आप देखिए यहाँ पे सेंटेंस के अंदर जो विशेषण वाला जो ग्रुप है उसको हम यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करिए। जैसे पहला एग्जाम्पल है, आवर क्लास टीचर इज़ अ मैन विद ग्रेट नॉलेज। तो यहाँ पे सर्टेन ग्रुप ऑफ वर्ड जो है ये हमारे टीचर के बारे में डिस्क्राइब करता है। द स्पेसिफिक थिंग is being told about our teacher. ठीक है, specific quality और specific trait you can say guys. In the second example, this ring is made of gold. तो of gold defines about a particular metal. ठीक है, as in noun phrase you have known कि हमें जो स्टेटमेंट दिया है उसको हमें what में क्वेश्चन अगर निकल के आ रहा है तो वो नाउन फ्रेज हो गया। इन द सेम वे एडजेक्टिव फ्रेज जनरली और मोस्ट प्रोबेबली आंसर द क्वेश्चंस विच, वो व्हाट को रिप्लाई करते हैं और ये जो है ये विच को रिप्लाई करते हैं। कैसे, देखिए एग्जाम्पल, आवर क्लास टीचर इज़ अ मैन विद ग्रेट क्वालिटी या विद ग्रेट नॉलेज। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या फॉर्म करेंगे, यहाँ पे विच क्वालिटी योर टीचर पजेस। ठीक है, विच क्वालिटी या फिर व्हाट क्वालिटी भी आप यहाँ पे कह सकते हैं, बट विच जो है विच एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को डिफाइन करता है, इसीलिए विच जो है उसका आंसर निकल के आएगा ये। सेकेंड एग्जाम्पल को भी आप देख लीजिए, दिस रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड। ये जो अंगूठी है ये सोने की बनी हुई है, तो विच मेटल ऑफ गोल्ड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, विच मेटल, कौन सा मेटल है, तो मेटल कौन सा हो गया यहाँ पे, गोल्ड। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आसानी से। जस्ट take the answer and generally form the question at the same time, definitely you will get the answer for that. चलिए इसके आगे अब हम आपको बताएंगे एडवर्ब फ्रेज। अब चाहें तो उसको एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब मैंने आपको भी समझाया नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, और अब हमारा थर्ड नंबर का है एडवर्ब फ्रेज। इसको भी देख लेते हैं डेफिनेशन के साथ में। वैसे डेफिनेशन सेम है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, फिर भी आपको रिपीट कर देती हूँ एक बार। देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द फंक्शन ऑफ एन एडवर्ब इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड एन एडवर्ब। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस के अंदर
एडवर्ब की तरीके से फंक्शन करेगा तो उसको हम एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ही लिव्ड इन सऊदी अरेबिया वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर वंस अपॉन अ टाइम जो है ये एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है, ये एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है इस जगह पे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, प्लीज़ प्लेस द केमिकल्स इन द स्टोर रूम। यहाँ पर इन द स्टोर रूम जो है वो एडवर्ब का काम कर रहा है। सिंपल सी बात है, चाहे नाउन हो, चाहे एडजेक्टिव हो, चाहे एडवर्ब हो, डेफिनेशन सबकी मालूम कर लीजिए आप, आराम से आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। एडवर्ब का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, एडवर्ब का फॉर्मूला होता है एड प्लस वर्ब इक्वल्स टू एडवर्ब, ठीक है। वैसे बेसिकली हमको वर्ब को ऐड करना होता है, लेकिन वर्ब के अलावा कभी कभी हमें एडजेक्टिव भी आ जाते हैं इसमें, ठीक है। समटाइम्स अनदर टाइप्स ऑफ एडवर्ब भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक एडिशन दिखाया गया है, अनदर टाइप ऑफ एडजेक्टिव इक्वल्स टू एडवर्ब। तो जब ये सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं वर्ब के साथ में, कभी एडजेक्टिव के साथ में, कभी दूसरे टाइप के एडवर्ब के साथ में, तो वो एक तरीके का एडवर्ब बन जाता है, ठीक है। तो अब आप इसको इस तरीके से भी समझिए, यहाँ पर नोट दिया हुआ है, जैसे आपने देखा कि नाउन में आंसर करेगा क्वेश्चन व्हाट का, इस तरीके से एडजेक्टिव में आंसर करेगा क्वेश्चन विच का। इन द सेम वे यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज जो है इन मोस्ट प्रोबेबली आंसर द क्वेश्चन वेयर, व्हेन, हाउ। वेयर रेफर्स टू द प्लेस, व्हेन रेफर्स टू द टाइम एंड हाउ रेफर्स टू द मैनर। एडवर्ब में यही सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे आने वाली नोटिफिकेशंस के लिए भी आप तैयार रहिए। थैंक यू वेरी मच।